बच्चे पूछते हैं मेरी फैमिली के कि अच्छा तो आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? तो मैं कहती हूँ अम्मी। जो चीज़ें वाक़ई तकलीफ़ देती हैं ना, जी वो ये है प्रोडक्शन, वो अभी भी देती है ऑन मोस्ट ऑफ द सेट्स कि लोग वक़्त पे खुद नहीं आते हैं। जब आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आपने हमेशा ये कहना है कि मेरे अलावा सबका कसूर है। आपकी घर की होम वीडियो नहीं है, ये टीवी पे चलना है और उसके बाद दुनिया में जाना है। और आपका क्या, आपका तो कोई नाम भी नहीं जानता होगा, बट जिसकी शक्ल नज़र आ रही है, उसका क्या कसूर है? उसको तो लोग सड़क पे पकड़ लेंगे। जो ऑडियो पे है उसको अपना काम ठीक से नहीं आता। यही माइनर मेजर हो जाता है जब कैमरामैन को अपना काम अ, सही नहीं आता। खुद से ऐसे नहीं आता, क्योंकि अब हम बहुत आगे दुनिया चली गई है। Bismillahirrahmanirrahim. Hello, everyone, and welcome to another episode of Behind the Curtain, which is a Take Two edition. Tonight, I have actually today and tonight both. I have an icon of our entertainment industry with us, who's probably given decades to how it started, how it is, and how it has been. Not only being a flawless actor and an actress, she's also a director. She's also appeared in a film as well, and she's given countless years as a service to the Pakistan media fraternity. I do look up to her a lot because I've had a chance to work with her as well once, and she taught me a lot. कि उस एंड पे कैसे काम किया जाता है, सेट पे कैसे काम किया जाता है. And of course, her work speaks. For example, I have with me none other than Stella Rubina Ashraf Apa with me, and I have bugged her a lot for this because she doesn't very easily come on such sessions. But she was very, very kind enough to take out time for this. Thank you very much, Rubina Apa. कैसी हैं आप? ठीक ठाक? No, thank you. I would love to speak my heart, and I would love to answer some intelligent questions. ठीक है. So I am good, and I am looking forward to what you मिला. give ठीक. me. रुबीना Let's बाबा, see. हाँ. पहले तो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं टोरंटो में था तो अभी तो मैं आजकल आई एम इन कराची दिस डेज विजिटिंग, बट यू वर डायग्नोज्ड विद कोविड, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट Yeah. यू आर आउट ऑफ दैट वेरी वेरी सिवियर डायग्नोसिस. एंड वहां तक भी काफी इंडस्ट्री जो थी काफी परेशान थी, बिकॉज वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग जो जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था दैट इफ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर सपोज टू कम ऑन स्क्रीन, that just tells you how Hmm. fragile our system is. But I'm very happy that you bounced back and you were out of it. So I'm glad you're there. And Actually, back. Yeah. Actually, back from the brink. Back बिल्कुल from the बिल्कुल. brink. That's what it was. Absolutely. Because I wasn't expecting to be, here among all of you. अभी भी मैं काम पे जाती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह मियाँ, you've given me another chance, and alhamdulillah. And the fact that it was a hard journey, and we pulled it through, me and my family, तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी. And अभी भी I was out somewhere and somebody was saying कि कुछ नहीं है, ये तो फ्लू है. And I said, बेटे, don't even think that. 100 दफा जिंदगी में लोगों को फ्लू होता है, लोग मरते नहीं हैं. People are dying. So don't underestimate the terror of the severity of this thing. But I was so stressed. It was difficult. It was hard. मैं अपना बैठने की जगह को स्टेलाइज करती थी स्प्रे से, तो मुझे लगता था मेरे हाथ गंदे हो गए हैं. हाथ साफ करती थी तो लगता था कपड़े गंदे हो गए, because the trauma is there. And once you know that there is a thing that's there, and it's, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना, even people who don't even go out sometimes contact COVID, पता नहीं कैसे घर के बिल्कुल. स्टाफ से कोई बाहर से कुछ आ गया है. It's happening to everyone. So whatever anybody is doing is not going to help जब तक कि हम खुद बहुत ज्यादा vigilant नहीं होंगे. And उसके बाद भी हमें अल्लाह की मदद चाहिए. चलिए, fair enough. I guess जो आप कह रही हैं कि we have to be careful ourselves rather than relying on other people, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस वक्त चलना, कि हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा. Exactly. हाँ, अच्छा. रखना पड़ेगा. अच्छा रवीना आपा, being someone who's been there since the PTV days, the whole private network setup and all that, I feel that you have given a lot to the industry
as an actor, as a performer, as being part of the fraternity. Do you think that you've received the same from the industry in return? ये इंडस्ट्री की जिम्मेदारी एज सच है नहीं टू अच्छा, गिव मी समथिंग इन रिटर्न, नहीं। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है जो हम सबका इस वक्त जो मेजर सपोर्ट कर रहे हैं, खास तौर पे उन लोगों का टची पॉइंट है, वो ये कि हमारे यहाँ मे बी इन द वर्ल्ड ऑल्सो बट नॉट सो मच इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज यहाँ मेजर सपोर्ट के लिए कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते हैं। वो लोग जो कि 2 डिकेड्स 3 डिकेड्स दे के इस काम को सीख चुके होते हैं, जो मंजे हुए होते हैं, जिनको समझ आता है काम, उनको आप बिल्कुल वो काम देते हो जो कि काम ही नहीं है। यू नो, सही है। आई एम जस्ट सिटिंग देयर एंड सेइंग जी बेटा बेटा खाना खा लिया। तो मुझे कोई जैसे बच्चे पूछते हैं मेरी फैमिली के कि अच्छा तो आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ अम्मी। आई मीन द कैरेक्टर इज अम्मी एंड अम्मी is no good. Ammi is just a mediator, which is not so in actuality. अम्मी इज ऑलवेज बड़ी कोई अम्मी का बड़ा रोल होता है, मतलब अम्मी बेचारी का तो काम ही नहीं खत्म होता, जिंदगी खत्म हो जाती है उनकी, बट उनका काम खत्म नहीं होता क्योंकि बच्चे जो हैं वो पालने हैं, बच्चों के उसके बाद बच्चों की शादियां संभालनी है, फिर उनके बाद उनके बच्चों के बच्चे संभालने, इन द मीन टाइम उस शादी को संभालते रहना है जो उनके बच्चों ने की है। सो अ मदर्स वर्क इज नेवर डन एंड दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। आप टीवी में जो काम दिखा रहे हैं माओं का, वो तो है ही नहीं माओं का काम, राइट, आए ही नहीं है, वो तो अनरियल है। That's a sad truth, but having said that, I don't know. मैं on as a person, I don't, as an actor, I don't feel कि किसी की जिम्मेदारी है मेरे लिए कुछ भी करना। मुझे लगता है कि जो भी कुछ मेरे लिए होगा वो मेरी ही किसी if I do well, then I will get more stuff to show my credibility and my craft. If I'm not getting a lot of work, maybe we are not getting diverse roles, maybe we are not somehow हम fulfill नहीं कर रहे हैं अपना part of the duty. So it's a two-way thing. Fair enough. So I don't play blaming games. I'd rather say कि शायद हम में कोई कमी है कि you're being very इतने capable नहीं है जैसे दुनिया में लोग अभी तक अमिताभ बच्चन के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, या फिर इन द वेस्ट हॉलीवुड में एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए अभी तक शोज और फिल्म्स के स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। सो मे बी हम कुछ कम अच्छे एक्टर हैं। नहीं हमारे एक्टर्स माशाल्लाह से you and including others are very very refined and well, and that's why lots of other industries in the world look up to us. मतलब कि हमारे ड्रामे अभी भी दुनिया भर में देखे जाते हैं, बनिस्बत हम उसके बारे में हम उसके लोकली जितना भी उसके बारे में बोले, लेकिन they are very very widely seen. That's the truth. But my thing was that obviously I'm very young and you're obviously senior. मैं तो सीखता हूँ। मुझे लगता है कभी-कभी कि जब मैंने आपके साथ काम भी किया था and I was very new at that time, I used to make a lot of fuss sometimes on set कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, and आप मुझे बोलते थे कि राफिल always be on top of things. Your line producer should be there on time, your associate should be there on time. ऐसा था नहीं वैसे, क्योंकि मुझे याद है early days में I think you would come on set and you would be ready for it. But somewhere along the line, you're a director as well. Somewhere along the line, कुछ हो गया. No, I want to ask you, ऐसा क्यों हुआ? Is it part of a glitch of the system, or is it something is a work in progress? What would your analysis be on this? I agree to it mostly because बहुत सारी चीजें हम पहले बहुत बेहतर करते थे। जैसे मैं अभी भी मेकअप वालों को कहती हूँ कि जब हम टेलीविजन के जमाने में काम करने के लिए पहुंचते थे सेट पे, तो हमारा मेकअप आर्टिस्ट मेकअप रूम में, तो हमारा मेकअप आर्टिस्ट सबसे पहले अपने हाथों को एक आफ्टर शेव या एक परफ्यूम या एक कलोन डाल के साफ करता था। सो हिज हैंड्स और हर हैंड्स वुड स्मेल नाइसर व्हेन he touches our face. That is what where we're coming from. So दोनों चीजें हैं, but दिल ये चाहता है कि सब कुछ ही परफेक्ट हो जाए।
मतलब हर चीज जो पहले की अच्छी थी वो भी हम लेट गो ना करें, और जो दुनिया में एट पार तो हम विद द वर्ल्ड है ना, हमारा ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले हैं और हमें ही सोचना है और इम्प्रोवाइज करना है और देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ हमारी इंडस्ट्री जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ऑल वी नीड टू डू इज चेक एंड जो जो हमारे बस में है उसको करें। सो जो चीजें वाकई तकलीफ देती है ना, जी। वो ये है प्रोडक्शन, वो अभी भी देती है। अच्छा, ठीक वो है। अभी भी तकलीफ दे है ऑन मोस्ट ऑफ द सेट्स, के लोग वक्त पे खुद नहीं आते हैं, दे प्ले मैटर्स कि जी फिर वो किसी पे डालना होता है ना, ये हमारी एक वो तो है जी, मैंने कौमी एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल खूबी है। बिल्कुल। कि फिर जब आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आपने हमेशा ये कहना है कि मेरे अलावा सबका कसूर है, एक सिर्फ मैं हूं जिसको आप मत कहें क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक किया था। गलती मानना नहीं है हमारी इस रिश्ते में एज अ नेशन, विच इज सैड, और उसकी वजह से हम बहुत गलत जगह पे चले जाते हैं कई दफा। फेयर सो इनफ। प्रोडक्शन नीड्स टू बी लॉट लॉट बेटर। ठीक है। प्रोडक्शन हेड्स नीड टू बी रियली विजिलेंट, उनको बहुत अभी काम की जरूरत है। अभिनव, आप ये बताएं कि आई मीन गेटिंग इनटू इंटेंस डायरेक्शन एज वेल, first director or first actor? I mean, what would you classify yourself as? First to actor, but I would say director at heart. No, because you know why I'm asking you this, because जब मैंने आपके साथ काम किया था, I remember it was Furqan Adam, मैं मानी बनना चाहती, and he was a young director, and you'd be telling him, so it felt like that there was a lot of direction coming from you. So I thought कि शायद maybe अंदर director ज़्यादा है, and it's that's why बहुत they're ज्यादा, calling. या बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा है। और वो इसलिए है कि हमने जब काम सीखा था ना, शुरू किया था, जी जी, उस वक्त काम बहुत इंटरेक्टिव था। बिल्कुल ठीक और है। ये काम है ही इंटरेक्टिव, ये काम ऐसे नहीं है कि रुबीना अपना काम करती रहे एज एन एक्टर, डायरेक्टर अपना अलहदा शॉट बनाए, दूसरा एक्टर अपना करे। नो, until and unless we gel together and work as a team, तो काम में वो नजर आता है। काम में अगर सब अलहदा अलहदा अपना काम करें और जब सब मिलके करते हैं, एक सीन को मिलके बनाते हैं, और जो जो तरीका है वो यही है कि एवरीबडी शुड बी allowed to, expected to give opinions, and those opinions should be considered. और हम तो खैर वेटरन्स हैं, पुराने हैं, जो नए भी हैं, कई दफा वो इतना अच्छा कोई एक दे देते हैं, एक टिप दे देते हैं कि आप कहते हैं हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। सो ये काम ऐसे है नहीं कि डायरेक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली अब हमने जिन लोगों को, बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, जी वो चूंकि नॉविसेस हैं और जी वो पहले ही एक तरह से इंटिमिडेटेड हैं बाय एक्टर्स के, ये पुराने लोग हैं, ये अपने आप को पता नहीं कुछ समझ रहे होंगे और इनको मैं डायरेक्टर नहीं लगूंगा। तो वो उस वजह से जरा सी कोई इनसिक्योरिटी जैसे आ जाती है, एंड देन दे अगर आप दे भी रहे हैं कोई मशवरा तो वो सुनते नहीं हैं। देयर इज one director that I work with, I will not name राइट, him, यस, but वो बच्चा नया डायरेक्टर था, and a fairly good one at that also. And he asked me कि अच्छा अब ये आपा एक ये सीन है जिसमें कि आप ये फ्लैशबैक है आपका, ठीक है, और वो एक सोप था जो हम कर रहे थे जिसमें कि मैं इसी उम्र की थी जिसकी मैं हूँ। ठीक है। तो ही सेड ये आपका फ्लैशबैक है। तो आई सेड ओके, एंड नाउ मुझे तो एक रेड बत्ती जलना शुरू हो गई ना कि अब नाउ आई एम इन द डेंजर जोन, ये अब कोई बहुत बेतुकी बात होने वाली है क्योंकि फ्लैशबैक आ गया है। एंड आई सेड अच्छा तो फिर कैसे करना है तुमने इसको? उसने कहा कुछ भी नहीं, आपका अच्छा सा मेकअप करेंगे। मैंने कहा तुम मेरा अच्छा सा मेकअप करोगे और मैं 20 साल कम हो जाऊंगी? ओह माय गॉड। ये तुमने सोचा कैसे है? उसने कहा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल लगेंगी बहुत यंग। ऐसे तुम्हें लगूंगी, अपने आप को भी नहीं लगूंगी और ऑडियंस को भी नहीं लगूंगी। मैं एक बेवकूफ औरत लगूंगी कि मैं बहुत सारा मेकअप करके और अपने आप को यंग समझ रही हूँ। सो इट डजंट हैपन लाइक दिस। सो मैं तुम्हें बताती हूँ कि फ्लैशबैक कैसे करेंगे। उसने कहा नहीं नहीं आपा ऐसे नहीं है। एंड आई टोल्ड हिम कि ये लाइट आ रही है वहां से सिल्वर्स में, मुझे और शबीर को खड़ा करो
और फ्लैशबैक कर लो, सिंपल। हमारी शक्लें नजर नहीं आएंगी, हम सीन कर देंगे। सीन भी हमारे बेटे के बारे में है, बेटे को तुम वो वाला बेटा मत लो, एक छोटा लड़का ले लो, सो इट विल बी अ फ्लैशबैक। ही सेड नहीं आपा, ऐसे तो नहीं होगा। एंड देयर शबीर जान सिटिंग राइट देयर प्लेइंग हिज गेम, जो कि वो हर वक्त खेल रहे होते हैं। तो ही आस्क्ड, तो शबीर भाई आप क्या कहते हैं? एंड शबीर आशुनी सेड, यार मैं तो फ्लैशबैक करता ही नहीं, बात ही खत्म। बिल्कुल सही था, उन्होंने कहा मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं फ्लैशबैक करता ही नहीं हूँ। जियो की टीम आ गई, पूरा डिस्कशन जो था वो बहुत ऊपर तक पहुंच गया, जो स्क्रिप्ट वाले थे वो आ गए। They kept asking me, आप क्या कह रही हैं? मैं उनको अपना पॉइंट एक्सप्लेन करी थी, वो अपना पॉइंट एक्सप्लेन करा था। आई सेड, कोई तो सेंसिबल आदमी हो जो ये बात सोच के मुझे बताए कि फ्लैशबैक सिर्फ मेकअप कर लेने से आप 15, 20, 25 साल छोटे नहीं हो जाते। बट दैट यू नो, वो जो मैं बात कर रही हूँ कि बच्चे अपनी इनसिक्योरिटी में व्हेन दे डायरेक्टिंग कई दफा भूल जाते हैं कि लोग बेवकूफ नहीं है। आपने ये सिर्फ अपने घर में आपकी घर की होम वीडियो नहीं है, ये टीवी पे चलना है और उसके बाद दुनिया में जाना है। और आपका क्या, आपका तो कोई नाम भी नहीं जानता होगा, बट जिसकी शक्ल नजर आ रही है उसका क्या कसूर है? उसको तो लोग सड़क पे पकड़ लेंगे। सो वी डिड इट द वे आई प्रपोज्ड, बट करना पड़ता है। You are absolutely right. I agree with you because अभी आपकी जो audience है, it's evolving, and you know, I mean that noise is being made कि हम evolve करें. But जब आप as a director, when you are reading this content, I'm sure you do come across this content, and you know वहाँ के जो head network honchos होते हैं बोलते हैं नहीं आप ये करें, तो do you fight with them? Do you tell them कि is it necessary to put this? I mean, is it necessary to evolve? या कुछ है ही नहीं चक्कर सुनने का, because you are, I mean, it is जी। तो आप नॉट जस्ट मी, नए बच्चे तक बहस करते हैं इस बात पे, और कि ये क्या है, ये तो मैंने पहले भी किया था, ये दोबारा क्यों है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। बट द ओनली आंसर वी गेट इज कि ये चैनल से अप्रूव्ड है। व्हाट डू यू से टू दैट? Well, I mean, obviously, anyone who's paying the bills, you can't argue with them कि जहाँ से आ रही आपकी payment, you can't do it. But as but आपके बस में सिर्फ ये है कि फिर आप कर लें, because you're not, your beggars can't be choosers. नहीं, absolutely, but जो then नहीं again, I mean, करते हैं वो बेचारे फिर बहुत दिन तक इंतजार करते हैं और फिर बहुत दिन बाद कोई एक चीज आती है, but that's not जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ जाती है ना। I'm a professional actor. I want to be working at least 5 days a week. Yes, so, absolutely. तो फिर मैं रिफ्यूज नहीं कर सकती ना, फिर मुझे जो कुछ मेरी तरफ आएगा वो लेना पड़ेगा। बस यही कर सकती हूँ कि उसको बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करूँ, बट समटाइम्स इवन दैट डजंट वर्क, बिकॉज समथिंग व्हिच इज सेंसलेस, उसमें से आप कितनी सेंस निकालेंगे, मतलब कुछ भी नचोड़ के नहीं निकलेगा ना। नहीं, I agree with you. I mean, if it's coming from someone like you obviously have experienced a lot of. जरूर आप शोर ही मचा दी होंगी, आप तो ratings भी दे रही थी रुसवाई पे, तो I understand that you know it was probably working out for you in some favor. अच्छा, just a couple of more questions and we can wrap it up. एक ये था कि मैं बड़ा believe करता हूँ associations के अंदर, आपकी जो unions है, you know, when you have an actors association, when you have a directors guild, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे नजर नहीं आता in the fraternity that you know people are unified to work towards a progressive environment. क्योंकि आप हिस्सा रही हैं, you know, in the golden days and right now, why is it like that we're not unified as an industry, or am I wrong? Well, not on paper, maybe we are not, but generally, basically, we are. अच्छा. So it's just that वो formulate करना somehow नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो हमसे हो जाती हैं। मुस्तकिल अभी भी मैं बात कर रही थी उन लोगों से, उनमें से किसी एक से जो लोग अभी इस वक्त एक्टर्स एसोसिएशन बना रहे हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी यू नो थॉट अबाउट, और उनको लेट गो कर दें। अगर डिसएग्रीमेंट लोगों का उस पर बहुत ज्यादा है और कोई मुश्किल नहीं है उनको लेट गो करना, तो हम somehow हम अभी हम अपने दिमाग खोल नहीं रहे हैं फॉर ओपिनियंस। एक्चुअली यही है जो जब तक हम इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, टू ओपन आवर माइंड्स टू डिफरेंट ओपिनियंस एंड यू नो, मकसद सिर्फ ये है कि उस काम को हो जाना चाहिए, उसके लिए 2, 4, 6 इश्यूज अगर हैं जिनको रिजॉल्व करना है वो हो जाएं, तब तक वो नहीं होगा, क्योंकि फिर गड़बड़ होती रहेगी। आई डोंट नो व्हाई दैट्स नॉट हैपनिंग। हमारी एक्टर्स की यूनियन क्यों नहीं अभी तक एज ऑन पेपर नहीं बन रही है, बट
but the people who always try and make the union, वो यही नहीं सोच रहे कि क्यों नहीं बन रही, वो बाकी सब कुछ कर रहे हैं. हाँ, I mean there's a bit of a disunity because वो मुझे as a filmmaker नजर आता है कि issues exist करते हैं, लेकिन hopefully it will pass. अगर आपके सामने मैं पूछूं 3 वो कौन से main issues हैं जो हमारे set पे exist करते हैं from an actors and directors point of view, and how would you rectify it if you were given the chance? What would you say? जो ऑडियो पे है उसको अपना काम ठीक से नहीं आता, यही माइनर मेजर हो जाता है. जब कैमरामैन को अपना काम सही नहीं आता, खुद से ऐसे नहीं आता, क्योंकि अब हम बहुत आगे दुनिया चली गई है. सो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. असिस्टेंट को अपना काम जो है वो कैसे करना है, उसकी क्यों कब क्लास हो जानी चाहिए जब वो गलत करे. अभी भी मैं ड्रामे देखती हूँ जिनमें एक बच्ची है, उसको कोई बाप के साथ झगड़ा हुआ और लड़ाई हुई और बाप कमरे से चला गया, फिर बाप कमरे में वापस, फिर माँ और बहन कमरे में वापस आए. वो बच्ची बेहोश हो गई थी, उसको उठाया. जब वो बेहोश होने से पहले बाप के साथ उसकी नेल पॉलिश फर्क थी, जब वो उठी और उसने हाथ भी यहाँ रखा, उसकी नेल पॉलिश फर्क थी. आई मीन दैट in no way is a minor, it's a major blooper foul up. ये जमाना नहीं है इन हरकतों का. These should be checked and a whole lot of other things, मतलब so on and so forth. मैंने ये छोटी हैं. मैंने तीन रखा था because I thought that, you know, I mean, let's okay, हाँ ठीक नहीं fair enough. घर जो अमीर लगते हैं, अमीर घर जो गरीब लगते हैं, अमीर लड़के जो गरीब लगते हैं, और गरीब लड़के जो फिटेड, आप उसको क्या कहते हैं, वो जो आपकी आजकल नई शर्ट है ना, which is totally fitted, skin tight. अब गरीब लड़का है, मैं कह रही हूँ बेटे अपनी पुरानी कहाना, slim fit, that's the word, the slim fits, everybody has them now. जाहिर है उन्होंने पुरानी फेंक दी है, अब वो गरीब कर रहे हैं. मुझे दिखा दो कोई गरीब घर जिसका स्लिम फिट पहने है, unless के वो you know कोई ना कोई reason, but you know, and they're wearing slim fits. वो वही लगेंगे, वो अमीर में लगेंगे, वही वो गरीब में लगेंगे. Sad, but that's happening. No, absolutely, you're right, and I appreciate that. Rubina, I do understand that I've taken a little bit of time from you, and I'm thankful to you that you took out time for this session. It's very industry related, but on a parting note, because I have lots of just, you know, young people watching, lots of young upcoming filmmakers, television people watching. If you were to give them some genuine advice कि यार किस तरह से आगे बढ़ना है, काम करना है पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में, some parting thoughts of motivation, that'd be great from your end. I पता है अभी मसला ये है कि कोई भी आपसे मशवरा मांग नहीं रहा. सबको सब कुछ आता है, that's what they think. So मशवरा देने वाला जमाना खत्म हो गया, unless somebody really asks you. मेरे जैसे बेवकूफ फिर भी देते हैं कई दफा और बहुत मुंह की खाते हैं. So I would just say learn from the world, learn from where the world is going, watch what they are doing in every, you know, makeup ko dekh lo, you know, as in get-ups, look at what the world is doing, look at what our neighbors are doing, look at what Turkish players are doing, what Indian industry is doing, look at what Hollywood is doing, what Netflix is doing. So watch and learn. We are all self-taught. ऐसे ही है ये, और ये ऐसे ही चलेगा. So teach yourself. बहुत थोड़े में बहुत खुश हो रहे हैं लोग. So वो आपकी काम की उम्र कम कर रहा है. Very rightly put. No, that's fantastic. And on that note, this was a very wonderful session, Rubina Appa. I've been wanting to speak to you for a while. Of course, unfortunately, you were unwell, and I think बहुत कुछ मैंने आज भी सीखा है. मैं तो अच्छा आप माने ना माने, मैं अपने सीनियर से बहुत सीखता हूँ. You know, मैं सीखता जाता हूँ, फिर, you know, I replicate it. So this is great. Always going to be a library of people who spoke and they spoke their heart out. And for the Technical Foundation, and अगर pandemic नहीं होता तो I wish I would have come over and recorded directly, but of course safety first. So that's why exactly मेरे लिए इतना अच्छा होता, because मुझे जहर लग रहा है जब मुझे अपनी शक्ल नजर आती है, और मैंने कोशिश की है उधर देख के बात करने की, but I wasn't able to, because I'm very thankful. I'm very thankful you agreed, because I do understand for an artist it's very tough. So I'm highly obliged, and thank you so much for that. And inshallah, when things do tame down,
I do intend to meet you and I do intend to inshallah work with you again because obviously मुझे भी इसी इंडस्ट्री में काम करना है सबके साथ एंड मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि आपने मुझे सबसे पहला ड्रामा मुझे सिखाया था कि राफे इस तरह काम होता है इस तरह तो आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट यू टॉट मी अ लॉट व्हेन आई वाज अ वेरी वेरी जज्बाती young little boy who had entered the industry and we were so lucky to have you there also क्योंकि तुम सुनते थे ना और फिर चीजें ठीक हो जाती थी तो फर्क पड़ता है फर्क नहीं but thank you so much Rubina Appa once again I've been honored and अपना ख्याल रखिएगा for this wonderful session I will be in touch with you thank you so much for this all right